फ्रेम में आएगा, साइड हो। ये तू बोल मत कुछ। It's okay. रितेश भी तो नहीं है यहाँ पे। हो गया ऊटू उठ जा उठ जा उठ जा। She will definitely going to ask you what the hell do you think? अब वो she will। हाँ भाई देखा मैंने देखा। ले ले दूसरा। ले पप्पी। First of all, tell us about your jewelry. It's looking fabulous. Yeah, I'm wearing Jet Gems with emeralds by Gem Studio. Today, award shows is there. So, tell us about that. What kind of award show is happening? I think it's a very innovative award show, and it's been there for, I think this is the 11th time. So I'm really excited. It's my first time here, and I've seen some amazing designs, so I'm quite excited to see who the winners are. What is your favorite jewel? My favorite jewel is the diamond, and I think I like the jewelry which my mom gifted me most because they have a sentimental value. But also the jewelry I buy myself, I really enjoy buying jewelry because it's after a long time of work, you can afford a piece of nice jewelry. It's a really amazing feeling. Any upcoming projects that you want to share? Yeah, I've just started my NGO. It's called Seams for Dreams, and it uses fashion for a good cause. And actually, I'm doing an amazing event with Vogue end of this month. So I'm really excited to announce more about this next week. And you can donate your old clothes to Seams for Dreams. Thank you so much. बढ़िया। ये कुछ बोल मत रे। बोल मत थैंक यू। शादी नहीं हो रहा था कभी चले गए।
lovely and so is the jewelry. Tell us something about that. I believe I'm wearing Anmol Jewelers and Gemfields rubies. I like rubies. I have a few of them. I've never worn something. For me, this is heavy. So it's a really delicate. It's a really beautiful set, and I like the delicate earrings. So I'm really liking it. It's a good piece. Really nice. Tell us something. What are you expecting from the event? A lot of diamonds, a lot of. I'm expecting basically glamour, fun, beauty, a lot of shining, glitterati, stardust. Yeah, so fun basically. आज जो है अवार्ड शो है तो क्या लगता है किस तरह का अवार्ड शो होगा ये? आई थिंक अवार्ड शो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कोई भी पीस ऑफ ज्वेलरी में डिसाइड करने के लिए खासकर एक लड़की के लिए या किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है. एवरी जेम, एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी, हर आदमी की एक क्रिएटिविटी होती है. तो अगर किसी ने बहुत अपनी क्रिएटिविटी डाल के एक सर्टन पीस बनाया है, आई एम श्योर जज करने के लिए कि कौन सा पीस बेहतरीन है बहुत मुश्किल है. Smiley, what's going on the professional front? क्या चल रहा है? Well, on the professional front, we just finished Nach Paliye. There is something coming up, hopefully. Right now, I'm just working on myself, losing some weight and coming back in a new avatar. So definitely can we going? Will we see you any specific? Yes, you will. You will see a lot of me soon, I promise. Thank you. थैंक यू सो मच. ले लो ना. दादी यहाँ ले लेना ना विजुअल. यहाँ आएगी तब ले लो. नहीं आए नए हो. मेरा नाम रसिका भी नाम. तेज. तेरा नाम नहीं बोला. बस करे बंद कर दिनेश. बिगाड़ो फाइन माइक. बस करना अभी तू ही बचा है. बंद कर. राकेश. Thank you. Jewelry. Tell us about your jewelry. As women love jewelry, should I see there? Okay. As women love jewelry, I am no different. I'm wearing these jewelries, beautiful. There's this earring, the neck piece, and the handcuff. All of these green emeralds are set by the Gemfield gemstones. So pretty excited about this event, and there are a lot of awards which will be, really great to see who wins. So pretty excited. What type of jewelry? Sorry? Any memorable jewelry? I'm not wearing right now, but one memorable jewelry that I had was when I passed my 10th board exams. My family gifted me a diamond ring, so that was really, really special for me. It's not official yet, so I wish I could share it with you, but soon. Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am, to your left, right, left. Ma'am, to your left. Yeah. Ma'am, your left. Madam, yeah. Wide. I know I'm just giving the compliment. Sure. yaar. Please go ahead. Just chill. Thank you.
Yes. Rolling now. Yes. So to look into the center camera? Yes. Yeah. Ma'am, what are you looking forward to tonight? You know, I'm an Indian woman and we love jewelry. We can't do without our jewelry. So I'm looking forward to some spectacular designs winning. I'm just going to go and have a look and see some of the other displays. I'm wearing something by Jet Gems, and it's an exquisite piece of jewelry. Thrilled to be here. इसमें आप किस तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं? जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने इयरिंग्स पहनी है लेकिन नेक पीस में कुछ नहीं पहना। आप किस तरह की ज्वेलरी रियल लाइफ में पहनना पसंद करते हैं? I think you should have one piece and it should be striking. बहुत ज़्यादा क्रिसमस ट्री भी बनने की ज़रूरत नहीं है कि हर जगह से कुछ ना कुछ चिपकाया हुआ है. आई लाइक टू वेयर वन स्टेटमेंट पीस, एक अच्छा पीस. दैट्स व्हाट माय स्टाइल स्टेटमेंट इज. माय फेवरेट ज्वेलरी इज आई थिंक रिंग्स. आई लव रिंग्स. या एनी मेमोरेबल ज्वेलरी जो आपको मिली हो आपकी मम्मी से या फिर किसी से? जी, मेरी मदर ज्वेलरी की बहुत शौकीन है, तो उनके कई सारे एंटीक पीसेस हैं जो मेरे पास हैं एंड आई वेयर देम. मेरी मदर इन लॉ से मुझे कंगन मिले हैं बहुत खूबसूरत, विच आई थिंक टीवी सीरियल्स ने उनका नाम ख़राब कर दिया है कि कंगन का बहुत पॉलिटिक्स होता है उसके पीछे. बट आई गॉट देम फॉर माई वेडिंग एंड आई लव वेयरिंग देम. क्या चल रहा है? वेल, आई एम लुकिंग टू प्रोड्यूस अ फिल्म. ये चल रहा है. सो आई विल बी इन्वाइटिंग यू ऑल टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल कम soon. Yeah, so that's what's going on now. But I have 5 or 6 releases coming up in the year. I think you know Highway, then there's Secret, Ram Gopal Varma's, then there's Ghayal once again, then there's Kaak Sparsh, and then there's Love Shuda. So there's 4-5 films coming up this year. This kind of nation is going to celebrate Independence Day. Any wishes for you? Yes, I think हमने एक फिजिकल सेंस में इंडिपेंडेंस पा लिया है, बट mentally अभी especially the men of this country have not achieved independence. They still treat women like objects and that's a problem. We really, especially up north. महाराष्ट्र में इतना बुरा हाल नहीं है, but up north it's a very big problem. So I think that azadi for women is a concept more than an actuality. Thank you. Thank you. बात करते हैं किस तरह की ज्वेलरी आप पहनना पसंद करती है? Well, जैसे कि हम सब जानते हैं डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, बट आई एम मोर ऑफ अ कुंदन पर्सन. मुझे जो कुंदन और जयपुर की जो मीनाकारी वर्क होता है उसका ज़्यादा शौक है, बिकॉज आई थिंक आई हैव समथिंग, मुझे रॉयल्टी से बहुत प्रभाव है. सो आई रियली लाइक दैट. सो आई थिंक कुंदन इज समथिंग दैट आई वुड रियली लाइक. कोई मेमोरेबल ज्वेलरी जो आज तक आपको मिली हो अपने मम्मी डैडी से या किसी से? मेरी दादी माँ एक्चुअली उनके पास एक रूबी और डायमंड की रिंग थी. वो आई थिंक शी वाज जस्ट वेरी लाइक शी वाज ऑन अ डेथ बेड एंड तभी उन्होंने मुझे वो रिंग दी थी. और आई थिंक वो एक ही मेमोरी है उनकी जो मेरे साथ है. सो ऑटोमेटिकली वो रिंग मेरे दिल के बहुत करीब हो गई. सो आई हैव केप्ट इट. मैं पहनती भी नहीं हूँ वो, मैंने उसको संभाल के रखा है, बिकॉज अगर गुम गई तो वो चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? वेल, मेरी मूवी आ रही है 25 सितंबर को, किस किस को प्यार करूं. अब्बास मस्तान से डायरेक्ट कर रहे हैं, कपिल शर्मा हीरो है. और अभी 13th of this month, 13th August को ट्रेलर लॉन्च है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इट वाज अ फन शूट एंड आई होप आपको भी वो फिल्म पसंद आएगी. अच्छा, कपिल शर्मा के साथ मूवी है तो किस तरह का एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? कपिल इज़ टू फनी. आई मीन वो जो शो पे जितनी मजाक करते हैं उतनी ही रियल लाइफ में भी वो फनी है. एंड उनके साथ ऐसा होता था कि वो इम्प्रॉम्प्टू बहुत चीज़ें करते हैं, ऑन द सेट बहुत चीज़ें इम्प्रोवाइज कर लेते हैं. तो आपको हमेशा यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, क्योंकि लाइन्स कुछ और होती हैं और वो इम्प्रूव करके कुछ और बोल देते हैं. सो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज वो फिर थोड़ा नेचुरल टू एंड फ्रो डायलॉग हो जाता है रादर देन बीइंग स्क्रिप्टेड. सो इट वाज टू मच फन वर्किंग विद हिम. फिल्म किस तरह की होगी? कॉमेडी होगी या फिर किस तरह की होगी? आपके किरदार किस तरह का होगा? वेल, इट्स अ कॉमेडी फिल्म एंड कपिल शर्मा है तो इट हैज़ टू बी कॉमेडी. एंड अब्बास मस्तान सर की ने ये कॉमेडी आई थिंक वो इतनी फिल्में करते नहीं हैं. सो दिस इज़ अ न्यू एक्सपेरिमेंट इवन फॉर देम. एंड वॉट एवर आई हैव सीन ऑफ द फिल्म, वॉट एवर आई नो ऑफ द फिल्म, इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड. इतनी मज़ेदार फिल्म बनी है ना, मैं एग्जैजरेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ. आप फिल्म देख के खुद बोलेंगे कि बहुत अच्छी फिल्म है. Thank you so much and all the best. Thank you. मैम लेफ्ट साइड.
Completely forward. Yeah, okay. कोई नहीं या चलो जाने दो लेफ्ट श्रद्धा लेफ्ट या लेफ्ट को Well, I'm looking forward to firstly present an award. Jewelry is really important, like it can make or break your outfit. And as of now, I'm wearing Anmol earrings by Anmol Jewelers, set with Gemfields rubies. And yeah, looking forward to this show, presenting an award, I think, just now. Which kind of jewelries you wear? Well, I like really simple and minimalistic jewelry because I think less is more always. You know, with this outfit, this was the only earring I think that brought it completely out. So, like I said, jewelry is important and it can make or break your outfit. Shraddha, tell us about the outfit. It's looking catchy. Thank you. Well, I thought since it's a jewelry event, you know, it'll be cool to dress up in Western attire and then add jewelry to it. So I think it's a lot of power dressing and I love what I'm wearing and I feel really nice. Any upcoming projects? Yeah, I'm a part of Great Brand Masti. I've signed that film and I've already shot for the film in Rajkot for around 6 days. And I'm also doing Praval Raman's next film called Haunting of Bombay Mills. इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, आपके लिए फ्रीडम क्या है? मेरे लिए फ्रीडम ये है एज अ गर्ल स्पेशली कि आई कैन I'm independent, I'm financially independent, I don't depend on anybody and I can freely walk around wherever I want to, I can buy what I want to and I don't depend on anybody. That's what is independence for me personally. Thank you so much. Thank you. ज्वेलरी का अवार्ड नहीं नजराना ज्वेलरी अवार्ड हो ज्वेलरी जो भी अवार्ड यामी सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो. Thank you. और टेल अस अबाउट योर आउटफिट फर्स्ट ऑफ ऑल. Right. Thank you so much. और just feel like a deja vu क्योंकि पिछली बार भी मैं हिस्सा रह चुकी हूँ इंडियन रिटेलर जूलर्स अवार्ड का, which is very prestigious I feel. And आज जो मैंने पहना है it's a mermaid cut gown which my stylist Sanjana she styled me for this. And as always very minimal jewelry which is diamond. It's an infinity ring and just some champagne earrings and that's it. कोई मेमोरेबल ज्वेलरी जो आपको मिली हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी वो है मेरी नानी ने मुझे दी थी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में हुई थी. आई थिंक आई स्कोर्ड रियली वेल इन 8th स्टैंडर्ड. तो वो जो छोटी सी दोज झुमकीज दोज लिटिल गोल्ड झुमकीज दैट यू गेट, सो आई स्टिल हैव देम एंड आई स्टिल वेयर देम, स्पेशली जब मैं उनसे मिलती हूँ उनको बहुत अच्छा लगता है. तो या जेम माई सेल्फ आई एम अ जेम ऑफ अ पर्सन. What's going on in the professional? जी अभी बस लास्ट स्केच बचा है सनम रे का एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम लोग वो कैलगरी में शूट कर रहे हैं और आई थिंक मैं कभी गई नहीं हूँ कनाडा में. इट्स माई फर्स्ट विजिट और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस मूवी के हम लोग वहाँ पे शूट करने जा रहे हैं. दैट्स द लास्ट स्केच. उसके बाद मूवी विल स्टार्ट विद द पोस्ट प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर रिलीज इन वैलेंटाइंस. Freedom? I think first of all it's freedom of speech. I think we always talk about freedom. I think the day we start realizing that freedom is not just about what I want to do or what I can do, but also the fact what am I supposed to do as my duty, where it goes hand in hand. I think that is what freedom in real sense will experience. Absolutely. I think it's a very prestigious day.
And I think we can add more to this day by making sure that the rest of the 364 days are also celebrated in the same spirit in every smallest possible way. Thank you. Thank you so much. All the best. बोल मत उसमें कुछ. Thank you. I think आज तक मैं किसी भी ऐसी लड़की को नहीं मिली हूँ जिनको ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है. आजकल तो लड़के भी ज्वेलरी पहनते हैं, काफ़ी देखने में आता है. गोल्ड चेन्स वगैरह लड़कों को भी शौक है, ब्रेसलेट्स वगैरह पहनने का. तो आई थिंक मेरे लिए ज्वेलरी सिर्फ एक ऑर्नामेंट नहीं है कि आप अपने आप को सजाओ संवारो. मेरे हिसाब से वो एक इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं. एंड आई थिंक सबके ज़िंदगी में एक मुकाम होता है कि आप अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बहुओं के लिए आप ज्वेलरी कलेक्ट करो या शादी की सोचो. तो एक ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है ज्वेलरी कि आप अभी ख़रीदो तो 20 साल बाद, जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन सोना होती है और सोना सोना होता है, तो 20 साल बाद वो और भी इतनी दुगनी महंगी हो जाएगी, कभी कभी हाथ में नहीं आए. तो आई बिलीव कि ज्वेलरी इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. अभी इन्वेस्ट करो और आगे फिर पछताना ना पड़े. ये एक्चुअली मैं एंडोर्स कर रही हूँ पीएन गडगिल को, तो उनकी ज्वेलरी पहनी हुई हूँ. और पीएन गडगिल भी एक ऐसा ही ब्रांड है जो बहुत ही इनोवेटिव है और मेरे हिसाब से सबके बजट में जो बैठता है उनके हिसाब से वो चलते हैं. आज की जो रात है वो आप जानते हैं कि इट्स द इंडियन रिटेलर्स अवार्ड नाइट, ज्वेलरी रिटेलर्स अवार्ड नाइट. ये अपने आप में ही आई थिंक इंडिया के ज्वेलरी ऑस्कर्स है, क्योंकि ये एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ गुड, क्योंकि जब ज्वेलर्स ही एक आपस में एक कम्पेटिटिव स्पिरिट रखते हैं तो एक बेस्ट काम निकलता है सबका. जैसे हम आर्टिस्ट भी बहुत कोशिश करते हैं कि चलो यार इस फिल्म में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दो कि शायद अगले साल अवार्ड मिले. तो आई एम श्योर इन लोग भी ऐसी ही मेहनत करते हैं कि अच्छे डिज़ाइंस निकालें और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दें. तो आई थिंक हम कंज्यूमर्स के लिए ही अच्छा है. तो आगे दूसरी टॉपिक पे. चल कोई बात नहीं. अभी मेरी नेक्स्ट रिलीज होगी शब, जो ऑनिर ने डायरेक्ट की है. इट्स लाइक अ लव स्टोरी, थ्रिलर काइंड ऑफ अ लव स्टोरी, ह्यूमन ड्रामा. एंड इंटरेस्टिंग है. ऑनिर बहुत अलग तरीके की पिक्चरें बनाता है, तो और एक पुराने मित्र भी हैं, तो मज़ा आया उनके साथ काम करने में. जी हाँ, बिल्कुल. फ्रीडम आपके लिए क्या है? आई थिंक फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है कि आजकल की जनरेशन इतनी वैल्यू नहीं करती है जितने हम सोचते हैं. वो जो जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो लड़ के अपनी जान मिटा गए हम लोगों के लिए, आई फील हमको ज़्यादा थोड़ी वैल्यू करनी चाहिए. जहाँ तक कि हमारे देश का सवाल है, हम सब समझते हैं हाँ देश का प्रॉब्लम है यार, हमारी ज़िंदगी को तो इफेक्ट नहीं करना ना, चलो होने दो. वो एक गलत एटीट्यूड है जो आज की जनरेशन में कहीं कहीं नज़र आती है. आई फील हर एक अगर ये सोचने लगे कि जो देश की प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है और मुझे भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए और मुझे भी उठ के उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, तो आई फील ये देश बहुत ही सुधर जाएगा. इतना भाषण दे दिया और मैं क्या बोलूं. अच्छा हाँ, वो तो बिल्कुल. नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सबको स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं.